السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان صدیق۔ ٹیپٹا اور ریحان ایجوکیشن اسکول کے مشترکہ تعاون سے جاری ہمارے اس بوٹ کیمپ کے ڈے 13 میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ مقصد یعنی گول متعین نہیں کر پاتے یا راستے میں حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ قابل عمل اہداف کیسے بنائے جائیں اور خود کو مسلسل پرعزم کیسے رکھا جائے؟ آج کے اس لائیو سیشن میں ہم اسی موضوع پر اپنے اے آئی پارٹنر چیٹ جی پی ٹی سے اردو میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ چلیے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، Hey, how's it going? آج ہم اسٹریم یارڈ کے ذریعے اس لائیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے کچھ Ah, سوال و جواب کریں گے۔ اچھا جی بالکل شکریہ مجھے شامل کرنے کے لیے آج کا ٹاپک کیا رہے گا کوئی اچیویبل ایسا سوال بتائیے جی اچیویبل گولز، جی جی ٹھیک آگے بڑھیے میں سن ہے جی۔ میں سن رہی ہوں اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ زندگی میں واضح اہداف مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں دیکھتی ہوں جی بہت اچھا سوال ہے کلیئر گولز اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہی آپ کو ڈائریکشن اور مقصد دیتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو ہر فیصلہ مشکل لگے گا اور وقت برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے جب صاف گول ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم انرجی اور فیصلوں کو اسی طرف لگاتے ہو جو سچ میں میٹر کرتا ہے جیسے سے موٹیویشن اور کانفیڈنس دونوں بڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کلیئر گولز کی طرف آپ کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے نہیں ہے نا صحیح کہا آپ نے جی۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ قابل عمل یا حقیقی اہداف اور صرف خواب دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں جی قابل عمل اہداف مطلب ایسے لکش سے ہے جن کے ساتھ ایک صاف پلان اور ایکشن جڑے ہو صرف خواب دیکھنا ایک اچھا ہے لیکن قابل عمل لکش وہ ہوتا ہے جس میں سٹیپس ٹائم لائن اور پروگریس ٹریکنگ ہوتی ہے مثلا بزنس مین بننے کا خواب تب حقیقت بنتا ہے جب آپ کہتے ہیں میں 6 مہینوں میں ٹریننگ لوں گا چھوٹا آن لائن کاروبار شروع کروں گا ہر ہفتے کچھ نیا سیکھوں گا اس سے لگاتار محنت اور گروتھ ماپی جا سکتی ہے صرف خواب دیکھنے سے کام نہیں بنتا انہیں چھوٹے چھوٹے عملی قدموں میں توڑنا پڑتا ہے اور پھر ان پر لگاتار کام کرنا ہوتا ہے اوکے جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سمارٹ گولز کا فارمولہ کیا ہے اور یہ اہداف بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ ایک منٹ جی بہت اچھا سوال ہے دیکھیے اسمارٹ کا مطلب ہے اسپیسیفک میجریبل اچیویبل ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ یعنی آپ کا لکش صاف ہونا چاہیے اسے ماپا جا سکے وہ حاصل کرنے لائق ہو آپ کے مقصد سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے لیے ٹائم فکس ہو جیسے اگر کوئی کہے میں صرف انگلش سیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بہت وائڈ ہے لیکن اگر وہ کہے میں 3 مہینوں تک روز 30 منٹ انگلش پریکٹس کروں گا تاکہ بولنے کی کیپیبلٹی بہتر ہو سکے تو وہ اسمارٹ گول بن جاتا ہے اس سے کلیئرٹی ملتی ہے کنسسٹنسی بڑھتی ہے اور سکسیس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے سمجھ میں آیا جی آ گیا سمجھ۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ بڑے اہداف کو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ میں سوچتی ہوں جی بہت بڑھیا سوال ہے بڑے لکش کو چھوٹے چھوٹے کم ڈرانے والے سٹیپس میں بانٹیے جیسے اگر آپ کا لکش ایک سال میں کوئی نئی اسکل سیکھنا ہے تو اسے اس طرح بانٹ سکتے ہیں پہلے مہینے بیسک سیکھیے اگلے 2 مہینوں تک روز پریکٹس کرے پھر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائیے ہر سٹیپ پورا کرنے سے کانفیڈنس بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پروگرس ہو رہی ہے اس طرح نیند مضبوط ہوتی ہے موٹیویشن بنا رہتا ہے اور سکسیس زیادہ قریب لگنے لگتی ہے چھوٹی جیتیں بڑی جیت کی طرف لے جاتی ہے سمجھ میں آیا ہاں جی اوکے، بہت آپ نے زبردست جواب دیا اس کا۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ اہداف طے کرنے کے بعد اکثر لوگ شروعات میں تو پرجوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں موٹیویشن ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ میں دیکھتی ہوں ایک منٹ جی بہت اچھا سوال ہے
लोग शुरुआत में जोश में होते हैं, पर बाद में गोल्स बहुत बड़े लगने लगते हैं। फौरन रिजल्ट न दिखे तो उत्साह कम होने लगता है। अक्सर लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कामयाबी ज्यादातर आदतों और डिसिप्लिन से मिलती है। जब रूटीन स्ट्रांग हो तो पूरे दिन का होता नहीं। छोटी आदत बनाएं। इससे लॉन्ग टर्म का कामयाबी आती है। ओके जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि मुस्तकिल मिजाजी कायम रखने के लिए कौन सी आदत अपनानी चाहिए? एक मिनट मैं देखती हूँ। जी बहुत अच्छा सवाल है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है लगातार अपने गोल पर काम करते रहना। इसके लिए रोज एक फिक्स समय पर काम करने की आदत डालिए। हर दिन एक छोटा पूरा होने वाला टास्क तय कीजिए। अपनी प्रोग्रेस लिखते रहें या हफ्ते में एक बार रिव्यू करें। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताएं। और अगर किसी दिन आप अपना टारगेट पूरा ना कर पाएं तो खुद को दोष ना दें। अगले दिन फिर से शुरू कर दें। एक दिन रुकना नाकामी नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना नुकसान करता है। याद रखिए, कामयाबी बड़े स्टेप से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों और लगातार मेहनत से मिलती है। बस डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लें, वही आपको आपके गोल तक ले जाएगा। ओके। अच्छा, जब काम का नतीजा फ़ौरन ना मिल रहा हो तो ख़ुद को हौसलामंद कैसे रखा जाए? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नतीजे अक्सर धीरे धीरे आते हैं। छोटे छोटे सबूतों पर ध्यान दें, जैसे मैंने आज ये किया जो कल नहीं किया था। अपनी प्रोग्रेस छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। अपने गोल को लिख कर रखें और बीच बीच में रिव्यू करते रहें। अपने आप को सपोर्टिव लोगों के बीच रखें और याद रखें, एक दिन का रुक जाना हार नहीं होता। अगले दिन फिर से शुरू करें। मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन को आदत बनाएं, वही लॉन्ग टर्म में आपको आगे ले जाएगा। क्या वक्त की दुरुस्त तक़सीम यानी टाइम मैनेजमेंट अहदाफ़ के हुसूल के लिए लाज़मी है? एक सेकंड में देख लेती हूँ। जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज करते हैं तो हर ज़रूरी काम के लिए वक्त निकल आता है। इससे टाल मटोल कम होती है और काम समय पर पूरा होता है। अपनी डेली प्रायोरिटी सेट करें। बड़ी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में फ़र्क रखें। जब सही वक्त पर सही काम किया जाता है, वही कामयाबी और नाकामी का सबसे बड़ा फ़र्क बनता है। समझ आए? क्या मैं और आसान करूँ? ठीक है, अगर आप मज़ीद कुछ बताना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल बता दें आप नाज़रीन को। बिल्कुल। एक और बात, टाइम मैनेजमेंट को बर्डन ना समझिए, इसे सपोर्ट समझिए। जब हम अपनी एनर्जी और फोकस के हिसाब से काम बांटते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। हर हफ्ते अपने शेड्यूल को चेक करें। जो काम नहीं आ रहे उन्हें हटाएं और जो काम मैटर करते हैं उन्हीं प्रायोरिटी पर रखें। छोटे छोटे ब्रेक, अपनी बाउंड्रीज का ख्याल और रियलिस्टिक प्लानिंग आपको लॉन्ग रेस के लिए बैलेंस में रखती है। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असल चाबी है। बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास्ते में आने वाली मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद अपने मकसद पर कैसे नज़र रखी जाए? एक मिनट में सोच लेती हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। ज़िंदगी में रुकावटें आना नॉर्मल है। असल बात यह है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। अपने बड़े मकसद को याद रखें, रुकावटों को सीखने का मौका समझें और अपने प्लान को ज़रूरत के मुताबिक बदलते रहें, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन ना छोड़ें। रिव्यू करते रहें, छोटी छोटी जीत को नोटिस करें और हर चुनौती के बाद खुद को याद दिलाएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और लगातार कोशिश ही आखिरकार आपको मकसद तक पहुंचाती है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग और माहौल हमारी मोटिवेशन पर कैसे असरअंदाज होते हैं?
एक सेकेंड, हाँ, ये भी बहुत असर डालता है। अगर आप पॉजिटिव और मेहनती लोगों के बीच रहते हैं तो आपके अपने गोल्स पर डटे रहना आसान हो जाता है। लेकिन अगर माहौल नेगेटिव हो या लोग हिम्मत तोड़ने वाली बातें करें तो मोटिवेशन गिर सकती है। आपका माहौल, चाहे वो पढ़ाई की जगह हो या काम की, वो भी बहुत मैटर करता है। क्लटर कम हो, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में हो और सपोर्टिव लोग पास हो तो आप फोकस में रहते हैं। वरना अगर हर वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें ध्यान भटकाएं तो अपने लक्ष्य पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छी संगत चुनें, ऐसा माहौल बनाएं जहां आप फोकस कर सकें और नेगेटिविटी की बजाय अपने प्रोग्रेस पर नज़र रखें। सही संगत और पॉजिटिव माहौल मुश्किल वक्त में भी आपको आपके गोल पर टिके रहने का हौसला देते हैं। ओके जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर कोई हदफ पूरा ना हो सके तो मायूस होने की बजाय दोबारा प्लानिंग कैसे की जाए? एक मिनट में देख दिया। जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई गोल पूरा ना हो पाए तो सबसे पहले मायूस होने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि वो पूरा क्यों नहीं हुआ। अपनी प्लानिंग को रिव्यू करें, बड़े गोल को फिर से छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। ज़रूरत हो तो टाइमलाइन बदलें या कोई नया तरीका ट्राई करें। कभी कभी मकसद वही रहता है, सिर्फ रास्ता बदलना पड़ता है। साथ ही अपनी तरक्की को याद करें। अगर आपने कुछ सीखा है, कोई नई आदत बनाई है या कोई नया तजुर्बा लिया है, वो भी आपकी तरक्की है। याद रखें, एक गोल पूरा न होना आपकी काबिलियत का फैसला नहीं है। असली कामयाबी ये है कि आप हर तजुर्बे से सीख कर बेहतर प्लानिंग के साथ फिर से कोशिश करें और अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहें। इसी लगन, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। चैट जीपीटी इतनी ज़बरदस्त और रहनुमा बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये था हमारा सेशन अहदाफ के तयन और मोटिवेशन पर। अपने मकासद वाज़ेह रखें और रोज़ाना एक छोटा कदम उठाएं। टैप्टा और रिहान एआई एजुकेशन की तरफ से रिजवान सदीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।